watching the network Connecting State in One News. I'm Atar Bingya. So right now we are here at Rajiv Gandhi University campus. So on 18th of October, an application letter was sent to the registrar of Rajiv Gandhi University pertaining to the withdrawal of FIR against RGUSU, that is Rajiv Gandhi University Students Union. Actually, on 17th of October, the chamber of VC was vandalized by some of the miscreants. Meanwhile, in nutshell, the RGUSU have requested the registrar to withdraw the FIR of any legal case that have been filed against RGUSU CEMS within 10 p.m. of 18th of October, which happens to be yesterday. Further, the team RGUSU have decided to go for the democratic movement if the demands not being met. Since the demand of RGUSU, that is the withdrawal of FIR case filed against them, have not been met yet, since today is 19th of October, the students are going insane and there's huge chaos in the gate of Rajiv Gandhi University campus. There is no movement of people in and out of the campus, and they are soon to start a democratic movement if the demands not being met. So here's a report. Where is your president? I said, sir, I don't know. I am new in this hostel. Who is the president? I actually don't know. Then out of nowhere, inspector rank officer, he slapped me, not once but thrice. So I said, sir, why did you slap me? He said, where is your president? So right now I'm here at Rajiv Gandhi University campus. As you can see, the students are protesting. They are in the sit-in dharna regarding the fulfillment of certain demands. So here are the charter of demands that they want. First demand, withdrawal of FIR lodged against the President and Secretary of RGUSU. Second demand, immediate withdrawal of police force from vicinity of RGU. Third demand, immediate installation of the dilapidated road condition in RGU and BCom halls of residence. Fourth demand, hostel fee hike. Fifth demand, immediate installation of Wi-Fi in every hostel. Now the sixth demand is immediate installation and maintenance of street lights. Seventh demand is immediate revival of old prefect system. So these are the demands, charter of demands that have been placed by the students of RGU. As we can see, there's a huge protest and going on here. यहाँ में जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, गेट जो लोग चल रहा है, ये चीज़ को देखते हुए अथॉरिटीज़ का तरफ से भी अप्रोच आया, स्टूडेंट का तरफ से अप्रोच आया कि किस तरह से एक सॉल्यूशन लाना चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा पहले हम लोग और यूनिवर्सिटी का जितना स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट है और ऑफिसर से हम लोग डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में इस तरह से बात हुआ कि जो लीगल मैटर है उसको हमारा यहाँ पे एडवोकेट बहुत ज़्यादा है, एक्सपर्ट, उस चीज़ को हम लोग देख के जो लीगल प्रोसीड्योर को हम लोग करेगा और कॉर्नर से हम लोग कोऑपरेट मिलेगा उसके लिए, उस चीज़ को हम लोग आगे जाके नॉर्मलाइज करने के लिए करेगा। किस तरह से हम लोग अपना लड़का को सेव कर सकता है, बचा सकता है, उसको हम लोग देख के करेगा। तो कुछ हद तक अथॉरिटी भी उसमें हम लोगों का साथ देने के लिए बात किया है जितना सकेगा। तो उसमें और दूसरा जितना जो यहाँ में डिमांड्स रहा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो डिमांड रहा,
उस डिमांड को ऑलमोस्ट 100% अथॉरिटी ने माना। और RGSU का जो सस्पेंशन का बात है, सस्पेंशन का बात को भी अथॉरिटी ने ये माना कि अगर नॉर्मलाइज हो जाता है, इस तरह से अगर ह्यू एंड क्राई नहीं होकर नॉर्मलाइज हो जाता है, विद इन नो टाइम सस्पेंशन को भी वापस कर लेगा, रिवोक कर लेगा। तो बाकी जो मैटर है, हम जिस तरह से बात चला है, हम रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो रजिस्टर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, वो आगे का चीज़ को बताए, क्योंकि एक्शन टेकन करने वाला वही है। तो सर को मैं ये बाइक को आगे दे रहा हूँ कि किस तरह से करना है, उसको आप बता दीजिए। ये सबका कंसर्न है। लास्ट 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी में जो हैपनिंग हो रहा है, एवरी वन ऑफ अस इंक्लूडिंग स्टूडेंट जो अभी यहाँ में हैं, आप लोग कंसर्न ज़रूर होगा मेरे ख्याल से। तो हम ज़्यादा या बोलने के लिए नहीं आए हैं। जो आप लोग इशू रेज किया है प्रीपेक्टशिप को ये इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए हम लोग प्रोसेस तो ऑलरेडी ऑन था। उस दिन जैसा आप लोग उधर में BC चैम्बर में रेन से होने का बाद हम लोग एक पॉइंट में एग्री हुआ है कि उसको ये चीज़ को हम लोग AC में लेके जाए, क्योंकि ये एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डिसीजन होके आया है। तो सेम वे उसको हम लोग AC और EC में लेके जाएगा। तो AC हम लोग 27 को बुला रहा है, ये 27 को ये जो इशू को हम लोग AC में लेके जाएगा। AC में डिलीब्रेशंस होगा, डिलीब्रेशंस होके उसका आउटकम नेक्स्ट डे में EC 28 को हम लोग बुलाए। इसके लिए नहीं, बाकी इशू भी है, बाकी एजेंडा है, प्रेसिंग एजेंडा है, उसका साथ में हम लोग ये एजेंडा को भी डालेगा। तो उसमें जो डिसीजन होगा नेक्स्ट 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा। ये आप लोग का इशू रहा ना। उसका बाद बाकी जो आप लोग अभी जो एडिशनल रेज किया है, जैसा वाईफाई का हम सुबह तुरंत आप लोग जैसा, क्योंकि पहले हमको बताया नहीं गया था कि उस हॉस्टल में या ये हॉस्टल में ऐसा इशू है। सुबह हम जब मालूम चला तो मेरा कंसर्न ऑफिसर्स को पता लगाया, तो वो भी एडमिट किया 2-3 हॉस्टल में, 1-2 हॉस्टल में इशू है, वाईफाई का इशू है, उसको वो लोग रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कराएगा। उसमें कोई आप लोग बोलने का ही नहीं, मेरा ड्यूटी है, हम लोग का काम है, वो कर लेगा ना। उसका बाद जो रास्ता का ये है, ये भी इक्वली सबका कंसर्न है। अभी फिलहाल बारिश प्रोलॉन्ग होने का चलते ये काम मेंटेनेंस जो पुथोल वगैरह करने का था वो रुक गया। उसको हम लोग जो जहाँ मतलब पुथोल्स को ये करने का, उसको हम लोग ये नेक्स्ट नवंबर-दिसंबर में हम लोग मरम्मत करने का करेगा। उसका बाद जो मेजर वर्क है, क्योंकि यह पान का भी इशू है, जैसा उधर से ब्लैक टॉपिंग करना हो ये तक लास्ट हॉस्टल तक ना, तो थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए पान हम लोग को पार्क करना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो ये वगैरह पुथोल्स वगैरह हम लोग इमीडिएटली करेगा ना। और बाकी जो जैसा गांधी ने बताया कि आप लोग का जो RGSU का एक्टिविटीज़ को फ़िलहाल सस्पेंड किया, इसलिए कि ये एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसलिए हम लोग कल नोटिफाई किया था कि टेम्पररी सस्पेंड किया। ये एज एंड व्हेन सिचुएशन नॉर्मल होगा, जैसा आप लोग अभी यहाँ बहता हो, ऐसा सिचुएशन में तो हम लोग उसको रिवोक नहीं कर सकता है। तो आप फ्रीली कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा ना। ये है, और तो इशू नहीं है, ये हम आप लोग को बता रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सिटी का ये काम होने का नाते, प्लस एक गार्जियन होने का नाते आप लोग से मेरा अनुरोध है
आप लोग काइंडली ये ऐसा तो स्टेप मत लीजिए, क्योंकि अंदर में 500-600 पेरेंट्स गार्जियन फैमिली है, इन लोग का बच्चा है, इन लोग का इवन मेडिकल इशू भी है, आना जाना पड़ता है, बाहर से आदमी आना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है। इन लोगों को अभी तकलीफ, कल शाम भी 3-4 घंटा ऐसा हो गया, आज भी ऐसा हो रहा है। इसलिए ये तुरंत आप लोग खोल लीजिए, खोल के बाकी जो इशू को जो नॉर्मल वे में बात करना, डिस्कस करना हो, ऑलवेज वेलकम। मगर ऐसा ये वे में डिस्ट्रक्टिव वे में, वायलेंस में और ऐसा बंद करके, लाइफलाइन को बंद करके ऐसा काइंडली मत कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। I have a question for Mr. Gandhi, since you are representing the students union. Students grievances has obviously have to be your grievances. You are representing up to today right now. So the students have placed 7 demands. If the demands are not being met, what will be the further course of action taken? And let me shift the direction of yesterday's incident. How will you justify the 2 innocent children, I mean the students who were allegedly been beaten up with certain police personnel? Kindly give me your answer. देखिए, हर सॉल्यूशन जो है अथॉरिटी करता है। जैसे अभी जो स्टूडेंट ने जो डिमांड किया है वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता है, उसका गार्जियन सॉल्व नहीं कर सकता है। उस डिमांड को सॉल्व करने के लिए उस अथॉरिटी का ही मालिक कर सकता है। तो जो अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने डिमांड किया है, उस डिमांड को रिड्रेस करना ड्यूटी है अथॉरिटी का। तो मेरा ख्याल से ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होने के लिए शायद, और जो लड़का लोग का डिमांड भी है वो कोई गलत डिमांड है, बाहर आदमी के लिए नहीं है, अपना यूनिवर्सिटी के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए ही है। अगर वो लड़का लोग कहीं बाहर आदमी के लिए कुछ डिमांड करता है तो गलत है। लेकिन जो अभी जो डिमांड कर रहा है, जो 7 पॉइंट आपने बोला, वो जो डिमांड जो है यूनिवर्सिटी का गुडविल के लिए है, यूनिवर्सिटी का अच्छाई के लिए है, ख़राब के लिए नहीं है। तो मेरा जो ख्याल है इसको अथॉरिटी भी समझना चाहिए। तो उसको समझने के लिए अथॉरिटी आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरा का सोच को समझना है। ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए अथॉरिटी बैठता उसमें, तो उस चीज़ को अथॉरिटी भी कभी कभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। That's what I'm saying. That's what I'm saying. Everybody they give verbally, मतलब हर कोई बोलता है कि ऐसा करेगा, वैसा करेगा, they're gonna do this, हम ये कर देगा, वो कर देगा, but they never put that thing into action. तो वही हम पूछ रहे हैं, you being representing the student leader, you are the voice of the student. तो अगर ये नहीं होता है बोलने से आपसू का तरफ से, what will be the course of action taken? Because we cannot ensure that whatever the registrar has said will happen. देखिए, हम लोग भी डिमांड नहीं कर सकता है। अरुणाचल में आजकल डिमांड मेमोरेंडम ही चल रहा है, वो हम लोग भी कर सकते हैं उसको। उसका अलावा अगर अथॉरिटी नहीं मानता है तो हम लोग डेमोक्रेटिक वे में मूवमेंट कर सकता है। जैसे जो डेमोक्रेटिक वे में अभी जो कर रहा है, इस तरह का चीज़ को हम लोग कर सकता है। उसका अलावा आप बताइए, हम स्टूडेंट लीडर हैं, हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है। एवरी स्टूडेंट लीडर डज नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। But you can put an effort. हाँ, वो इपोर्ट हम लगा सकता है, हम इपोर्ट को लगा रहा है, लास्ट तक लगाएगा। अभी तक नहीं, एक बार दूसरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि एक बार इपोर्ट करके चला जाएगा, ये चीज़ कंटिन्यू प्रोसेस होगा। एक बार क्या है तो इसको लास्ट तक जाने के लिए बात करेगा, तो उसको बात करने में बहुत शायद अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। केवल हम डिमांड कर सकता है, ये चीज़ होना है बोल के भी नहीं है। देने वाला भी सामने देखना पड़ेगा कितना दे सकता है। तो देने वाला अगर दे नहीं सकेगा, उसका ऊपर भी जोर जबरदस्ती करके क्या करेगा? इसलिए प्रॉब्लम जो है क्या है, हम लोग एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। हम डिमांड जरूर कर सकते हैं। आपका जो मीटिंग हुआ आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो सर मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला और आप लोग उससे कितना हद तक सहमत हैं? देखिए, मीटिंग का बात ऐसा है, हर चीज़ का सोल्यूशन एक होना पड़ता है। आज जो सोल्यूशन का दौर आया है, यहाँ में यूनिवर्सिटी का जो गेट जो बंद होने का वजह से हमारा यहाँ में मोर देन 500 जो हमारा पब्लिक है और यहाँ में ये जो एम्प्लॉय है उनको तकलीफ हो रहा है। एफआईआर का ऐसा है, व्हेन एफआईआर एक बार लॉन्च हो गया, केस रजिस्टर हो गया, उसको अभी पहले हमने बोला हम उसको लीगल वे में डील करेगा, लीगल वे में जाके कोर्ट में बात कर सकता है उसको हम। नहीं तो बाकी चीज़ को अभी हम देखो, अब ताला तोड़ना आसान है, किसी को मारना आसान है, लॉ को तोड़ना मुश्किल है। अगर लॉ किसी में अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो उस चीज़ को लॉ से ही हटाना पड़ेगा, लीगली उसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट किया,
कंप्लेनर अगर ज़्यादा ही जोर देता है तो एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, इस चीज़ को हमको एमिकेबली सॉल्यूशन करने के लिए दीजिए। अभी हम ये एफआईआर को लेके कोर्ट में जब जाएगा उस समय में हमको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको उसको सही ढंग से सॉल्यूशन ले, क्योंकि जो लड़का है वो क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। वो जितना भी काम किया जो यूनिवर्सिटी के लिए ही काम किया है, यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड किया है, बस एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसका वजह से ये चीज़ निकला है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बीइंग ए स्टूडेंट लीडर इसको भी हम दूर करने के लिए ट्राई करेगा। सर, स्टूडेंट का कहना है कि जो सिस्टम है उनको वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट है उनको जेल में नहीं डालना है। ये इसको हम भी कमेंट नहीं कर पाएगा। लीगल प्रोसेस में जिस तरह से जाएगा एक लीनियंसी ड्रॉ करने के लिए हम बात करेगा, लीनियंसी ड्रॉ करने के लिए बात करेगा, जहाँ में हर किसी को एक दूसरा को प्रॉब्लम ना हो, सेटिस्फाई हो, उस चीज़ तक हम करने के लिए जाएगा। सर, मेरा क्वेश्चन निकम सर से रहेगा। सर, अभी आपने आके कहा कि आप जो जितना भी मेमोरेंडम सबमिट किया, आपने एश्योरेंस किया कि जितना भी है करेंगे धीरे धीरे। पहले क्यों आपने जब मेमोरेंडम सबमिट किया, पहले आके क्यों ये चीज़ को सॉल्व नहीं किया है? जब धरना करने के बाद ही क्यों आगे आ रहा है? एक तो आपको क्लियर कर दूँ, ये मेमोरेंडम अभी जो जितना हम पॉइंट्स 2-3 पॉइंट बोला है, ये राइटिंग में या ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन इन लोग तरफ से नहीं आया। आज ही हम सुना है, आज ही हम देखा है पेपर्स को ना, देख के हम अपना खुद से इन लोग को कंसर्न ऑफिसर को भी हम अवेयर कर लिया है, बात कर लिया है। तो उस हिसाब से हम ये एक्चुअली बोलने का भी नहीं है, मेमोरेंडम देने का भी नहीं है, ये मेरा ही ड्यूटी है, हमारा ही काम है। उसको हम जब अभी रियलाइज हुआ, मालूम हुआ है, तो तुरंत उसको जितना हो सके हम लोग करने का कोशिश करेगा। एग्जैक्टली आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका काम बनता है कि जितना भी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब स्टूडेंट आपके साथ आता है तो आप कहता है कि वीसी को मिलो, फिर वीसी बोलता है कि आपको मिलो। यहाँ पे ऐसा हो कि ऐसा मतलब स्टूडेंट को चारा नहीं मिल रहा, तभी जाके ये मोमेंट उठाना पड़ा। सर, एडिंग ऑन टू हर, सर आप इसको इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेगा? वाज इट ऑर्डर फ्रॉम वीसी की स्टूडेंट को इग्नोर किया जाए? व्हाट इज द डिफरेंट? नो, दिस इज जस्ट कंट्रडिक्शन। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम लोग स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट का बात को हम कैसे इग्नोर करेगा? जो भी बात है उसको सुनेगा, उसको किस हिसाब से हम लोग रिजॉल्व करना है, उसको डील करना है या इसको अटेंशन देना है, उसको हम लोग निकालना पड़ेगा ना। और ये यूनिवर्सिटी Sir, है। adding to that, what is the paradigm going on between the VC and among you both? Because we don't understand, हमेशा इन ये VC का जब से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, there's always going on, कुछ ना कुछ होता रहता है. So what is exactly happening? Tell us the paradigm. That I can, if I know, उसको हम तुरंत 1 मिनट में रिजॉल्व करना चाहिए. That I cannot actually say. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एज सच आई डोंट फाइंड. हम लोग एक कॉर्डियल ये में काम कर रहा है. इंस्टीट्यूशन में BC अथॉरिटी है और ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं पड़ता. ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर ऑलवेज टुगेदर. जो भी डिसीजन होता है हम लोग डिलिब्रेशंस डिस्कशन का साथ में आता है. ऐसा कुछ डिक्टेटर या ऐसा तो हम कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि हर जो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह मेरा हाथ से जाता है. दैट डिसीजंस एंड actions are taken after due process. Deliberation, discussions, committee reports, वो सब आने का बात ही करते हैं. तो ऐसा कुछ हम अनइथिकल ऐसा महसूस नहीं हुआ है. Thank you very much. We have that 17 October has been declared as a black day by the teaching faculty. Is that true? That I cannot comment. FIR withdraw कब तक होगा? FIR आई थिंक FIR विड्रॉ नहीं होगा. FIR विड्रॉ नहीं होगा. उस चीज़ को देख के हम लोग किस तरह से लीगल वे में चीज़ को करना उसको देख लेगा, क्योंकि हर कोई इधर में फंसना नहीं चाहिए. उसको किस तरह से हम लोग अपना लीडर को निकालना है, अपना बाइल को निकालना है, किस तरह से हम लोग बाइल को सेफ में रखना है, उसको हम लोग देखेंगे. थैंक यू. Okay, thank you, sir.